Mind you, this was the strategy that helped me to score 36 questions right out of 50 questions in my very first attempt. Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel. I am Muskan Khanna, a PhD research scholar at University of Delhi, and I cleared my UGC NET JRF examination last year in my very first attempt. So this video is intended to help you out with your paper 1 strategy. Mind you, this was the strategy that helped me to score 36 questions right out of 50 questions in my very first attempt. And probably this was the reason why I could clear JRF in my very first attempt. So without further ado, let's straight away jump into this video. So when we talk about UGC NET paper 1, for those who are not aware, ये एक common paper होता है जो सबको देना होता है. But it does not mean that you get the same set of questions. अलग अलग questions आते हैं, but the syllabus is same for each and every subject, be it political science, be it commerce, be it science, whatever subject you have, आपको paper 1 देना होता है और उसका syllabus सबके लिए same है. So preparation primarily सबके लिए same रहती है. So अगर हम बात करें paper pattern की, there are 10 units जिसमें से roughly 5 questions हर unit से पूछे जाते हैं. It is not that fixed, but generally बोला जाता है that okay, you don't have to push on just one unit. आपको सबको equal importance देनी है जब आप पढ़ाई करेंगे. So there will be 50 questions paper 1 के, and each question is of 2 marks. So ये पूरा paper 100 marks का है. And हमने ये बहुत बार सुना है, and I will totally stick by it that ये पेपर मेक और ब्रेक पेपर होता है अगर आपको JRF क्लियर करना है. बिकॉज एक थ्रेशोल्ड होता है जो आप अपने सब्जेक्ट में टच कर लेते हो, एंड उसके बाद उस पर डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है. बिकॉज कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिस पर नो मैटर हाउ गुड यू प्रिपेयर, आप बैंक ऑन नहीं कर सकते कि हाँ मैं 75 के बियॉन्ड स्कोर कर पा रहा हूँ या 80 के बियॉन्ड कर पा रहा हूँ. कुछ ऐसे वे क्वेश्चंस होंगे ही जो जितना मर्जी आप अपने सब्जेक्ट में एस कर ले, यू कांट रियली गो 100 क्वेश्चंस में ऑल आउट और समथिंग लाइक दैट. सो यू नीड टू प्रिपेयर वेल फॉर दिस पेपर. सिलेबस क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है. सो देर आर 10 यूनिट्स दैट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर. सो दीज आर द 10 यूनिट्स. सो मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी जिसकी वजह से आई गॉट 36 क्वेश्चंस राइट आउट ऑफ 50 एंड आई कुड क्लियर JRF इन द फर्स्ट गो. मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी कि मुझे बहुत मल्टीपल सोर्सेज रेफर नहीं करने हैं. जो मैंने एक सोर्स किया है, आई विल रिवाइज दो सोर्सेज ओनली. एंड वन disclaimer that I want to give is that throughout my preparation, I imposed a lot of faith on making notes, handwritten notes. जो भी मैं पढ़ रही हूँ मैं उसके notes बनाती थी, because जब हम रिवाइज करने बैठते हैं एंड व्हेन वी आर इन द एग्जामिनेशन हॉल, वी कैन रिकलेक्ट अपनी हैंड राइटिंग वाले नोट्स. इट इज़ वेरी रेयर कि हम किसी बुक का, किसी वेबसाइट का, किसी वीडियो को रिकॉल कर पाए, अनलेस बहुत ही इम्पैक्टफुल, बहुत ही ऐसी वीडियो थी जो विच स्टेड इन योर हेड. बट अगर आप अपने नोट से ही पढ़ रहे हैं, उसे रिवाइज कर रहे हैं, देन देयर इज अ ह्यूज चांस दैट आपको वो याद आएगा व्हेन यू विल एनकाउंटर दैट क्वेश्चन. वन थिंग दैट आई विल ऐड ऑन, आई वाज really thoroughly prepared with current affairs during this entire preparation. So कुछ ना कुछ मुझे उससे हेल्प हुई. So I can't really say कि मैंने सिर्फ सिलेबस पढ़ा हुआ था. I had some previous knowledge of, you can say, polity related, environment related, current affair related preparation. Well, and I solved a few previous year questions. I would not say a lot, but I did solve a few previous year questions after going through my syllabus. The sources that I refer to, I think that is something that everybody keeps on asking. So सबसे पहले one stop solution जो मेरे लिए था, and this is not a sponsored video and I'm not trying to promote any particular educator, any particular brand or company for that matter. So जो मैंने use किया, जिसके मैंने notes भी बनाए, and I will stick my notes here and you can see the kind of notes that I made. So most of the units, अगर मैं बात करूँ, so if we talk about the units that are generally asked, so teaching, research, communication, ICT, higher education, logical reasoning, people, environment, ये सारे units की जो preparation थी, I did from the freely available YouTube videos. So one such educator that helped a lot was Bharat Kumar sir, and उनका पूरा playlist available है YouTube पे freely. So I attended all his lectures and मैं notes बनाती थी अपने. I'll attach the notes that I used to make for most of the units. मैंने वो notes बनाए and बहुत ही crisp, concise notes थे जो कि easily revise हो सकते थे.
सो मोस्ट ऑफ द यूनिट्स मैंने ऐसे पढ़ी. कुछ डिटेल स्ट्रैटेजी है हर यूनिट की जो मैंने फॉलो की. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे विच आई विल शेयर लेटर ऑन जब मैं यूनिट स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊंगी टू हेल्प यू आउट टू फर्दर डू योर प्रेपरेशन इन अ मच मोर डिटेल मैनर. कुछ एरियाज में आई वॉज प्रैक्टिसिंग अ लॉट फॉर सम अदर एग्जाम्स. मैं मैथ्स के and there are questions of ranking, sequence, profit loss, and data interpretation as well. So I was good with that because मैं खुद से preparation इसकी कर रही थी. बट हर एग्जाम का प्रेपरेशन एक अलग चीज़ डिमांड करता है. एंड मुझे लगा कि ये जो मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस है या जो DI इतना डिफिकल्ट आ रहा है आजकल, उसके लिए वन थिंग दैट हेल्प्ड मी अलॉट was some freely available PYQ videos जो YouTube पे थी. So one such channel was EduSeeker, जहाँ पर there's a ma'am who was teaching PYQ videos like 5-6 questions and pattern of questions ये आते हैं. So DI में, LR में, so there were some questions and मैंने practice किया उनके साथ video देखकर. And this was the practice I was doing just one day before the exam. एंड माइंड यू जो मैंने प्रैक्टिस किया, चाहे वो डायरेक्शन के क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस रिलेटेड क्वेश्चन हो, वो चाहे टेबल रिलेटेड क्वेश्चन हो, इट डिड टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो मैं अगर आपको बताऊँ तो आपको पता होना चाहिए दैट DI से 5 क्वेश्चन फिक्स्ड है, आता ही है हमेशा. देन पैसेज एक आएगा एंड आई फील पैसेज इज सच अ थिंग जो आपको ब्राउनी पॉइंट्स देता है. एंड आई डोंट नो उसमें गलती क्यों होती है, क्योंकि उसमें गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए. एंड द काइंड ऑफ पैसेजेस दैट NTA गिव्स एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो उससे आते हैं वो इतने बेसिक और इजी होते हैं दैट वो आपको श्योर 5 नंबर अपने मान लेने चाहिए. सो पैसेज इज समथिंग दैट यू शुड कम्प्लीटली बैंक ऑन. इफ़ यू फील आपकी लैंग्वेज में उतनी कमांड नहीं है, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, थोड़ा बहुत अखबार पढ़ो या ट्राई करो टू रीड द ओल्ड पैसेजेस ओनली एंड उनके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो. एंड मोस्टली क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आप अपनी खुद की नॉलेज पे भी कर सकते हो, आपको पैसेज पढ़ने की भी नीड नहीं होती. सो दैट इज़ वन थिंग. देन कुछ सिलॉजिज्म रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. आई मीन यूज यूट्यूब एज मच एज यू कैन. किसी स्पेसिफिक एजुकेटर का मैं बोलूँगी नहीं, आपसे सिलॉजिज्म यूट्यूब सर्च बार में डालो, there will be so many questions to solve कर रहे हैं. Need to be resourceful in that sense कि आपको खुद सर्च करना पड़ेगा, आपको एक जगह से पूरा मैटर और कंटेंट नहीं मिल जाएगा. ठीक है. अदर देन दैट देयर आर सम क्वेश्चंस जो मैथमेटिक्स के फिक्स्ड रहते हैं, परसेंटेज हो, इंक्रीज डिक्रीज हो, प्रॉफिट लॉस हो. देन कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स. आई मीन आई विल रेकमेंड, अगर आपने ये सब कभी नहीं पढ़ा है तो इनपुट आउटपुट रेशियो इतना ज़्यादा नहीं है इनका कि आप सारे प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशंस पढ़ो. मोस्टली पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC उन्हें ये चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, तो वो इनका प्रेपरेशन नहीं करते हैं. बट फॉर समबडी जो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम दे, वो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी. यू शुड नो द बेसिक्स. सो अगेन आप कोई भी वीडियो कोर्स उठा लीजिए, यूट्यूब से कर लीजिए. बट हाँ, सारे अभी तक कौन सा कन्वेंशन हुआ है, कौन सी ट्रीटीज हुई है, कौन से प्रोटोकॉल्स हुए हैं, डूइंग दैट फॉर वन क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो उसका इनपुट आउटपुट उतना ज़्यादा है. इससे अच्छा आप DI प्रैक्टिस कर लो ताकि एटलीस्ट वो 5 क्वेश्चन हो जाए. आजकल फिगर्स लैक्स में, करोड़्स में आ रही है. लोग छोड़ देते हैं. सारे मेरे फ्रेंड्स ने तुक्के मारे हैं दैट नहीं ABCD ऐसे है, हम CC कर देंगे, DDD कर देंगे, वट एवर इट इज, एंड चलो 2 तो सही हो जाएंगे. एंड मैंने वो 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मेरे वो 5 करेक्ट हुए थे. एंड आई थिंक वो ही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैं क्लियर कर पाई JRF. सो डोंट लीव थिंग्स जो डुएबल है एंड डोंट पुट अ लॉट ऑफ टाइम इतनी वेग चीज़ों पे जिनको करने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि उनका क्वेश्चन आएगा. ठीक है. अदर देन दैट कुछ बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना, डेसिमल से बाइनरी, वो भी आ जाता है. देन सम एडवांस कंप्यूटिंग टर्म्स जब आप वो लेक्चर्स पढ़ेंगे, करेंगे, ये सब आप कवर कर सकते हैं. नाउ वन थिंग दैट आई फील आई शुड टॉक अबाउट इज दैट नाउ दिस पेपर इज नॉट जस्ट फॉर नेट, नाउ दिस पेपर इज नॉट जस्ट फॉर JRF. सो ये एक PhD एंट्रेंस एग्जाम भी बन चुका है. सो जो रिसर्च के क्वेश्चन अब आएंगे और जो आए भी हैं इन सम ऑफ द पेपर्स, वो काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चंस आए हैं बिकॉज नाउ दे एक्सपेक्ट यू टू नो अबाउट ऑल ऑफ दैट, क्योंकि आप PhD में एडमिशन भी इसी स्कोर से लेने वाले हैं. सो हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चंस, साइटेशंस, प्लेजरिज्म, ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग. सो यहाँ पर जो मोस्टली एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं वो बहुत ब्रीफली आपको एक जस्ट तरीके से पढ़ाते हैं, बट दे आर आस्किंग डिटेल्ड क्वेश्चंस. सीक्वेंस बताओ, और वो सब तब आएगा जब आप प्रपोजल बनाएंगे एंड जब आप एक्चुअली रिसर्च कर रहे होंगे, जो कि अभी ऑब्वियसली इट्स नॉट द टाइम टू डू दैट. सो टू हेल्प यू आउट विद दैट आई एम अटैचिंग 2 बुक्स जिनके इंडेक्स आप यूज़ कर सकते हो टू नो
कि अच्छा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया है, मैं सिर्फ ये पर्टिकुलर टॉपिक देख लेता हूँ. दीज आर द बुक्स दैट आई यूज फॉर माई PhD एंट्रेंसेस, रिसर्च एप्टीट्यूड पूरा पढ़ने के लिए, बिकॉज काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी रिसर्च डेप्थ में पूछी जाती है. सो ये 2 किताबें मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ. सो यू कैन गो थ्रू दैट इफ़ यू हैव द टाइम. अदरवाइज आई विल से स्टिक टू योर नॉर्मल. देखो जनरली रिसर्च एंड एप्टीट्यूड वाले से रिसर्च के टाइप्स जनरली पूछे जाते हैं. सो देर आर अ लॉट ऑफ वेज जिससे आप कर सकते हो. अगेन आप यूट्यूब सोर्स यूज़ कर सकते हो या ये बुक यूज़ कर सकते हो जो मैंने की थी. इसमें बहुत ब्रीफ तरीके से रिसर्च के टाइप्स, ऑल डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो हैं, then variability, then hypothesis, then whatever things they ask, mostly covered है और brief में है. So you can do this. Then generally अब हायर एजुकेशन वगैरह में अगर हम देखें, so कुछ भी नया अगर हो रहा है, NEP सब पढ़ते ही आप, मोस्टली दे कैन आस्क एनी यूनिवर्सिटीज दैट आर बीइंग सेट अप. देन डिजिटल लाइब्रेरीज के बारे में वो लोग पूछ रहे हैं, ई शोध एंड सिंधु शोध गंगा, कोई भी न्यू इनिशिएटिव गवर्नमेंट अगर ले रहा है तो यू कैन फाइंड इट. आप गूगल करो. ICT में अगर हम बात करें, कुछ कुछ आजकल इन एवरी करंट अफेयर मैगजीन यू विल सी them mentioning about quantum mechanics and all of that. So कुछ quantum AI machine learning इनसे related question आ सकते हैं. Then क्योंकि रिजुविनेशन हो रहा है हमारी एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ का, सो नालंदा, तक्षशिला एंड ऑल ऑफ दैट, देयर इज अ क्वेश्चन दैट विल डेफिनेटली कम. एक्सेल पे क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेड कि नाउ इट इज़ एन एंट्रेंस फॉर PhD ऑल्सो. फैलिसीज पे आता है. आई वॉज नॉट गुड विद इट, मुझे समझ नहीं आती थी फैलिसीज, मैंने छोड़ दिया था. आई थिंक 1 क्वेश्चन केम एंड मेरी सिस्टर से मैंने एक रात पहले ही वो समझा था एंड आई कुड सॉल्व इट. सो इंडियन लॉजिक आई थिंक आप पढ़ते हैं, समझ आ जाता है. एक वीडियो भी देख लोगे, मैराथन वीडियोज इतने बने हुए हैं, वो आप कर सकते हो. देन DI के क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आते हैं जनरली, आप क्या पूछा जाता है, बहुत ही फिक्स चीज़ें हैं वो. आपसे इंक्रीज डिक्रीज, रेट ऑफ चेंज, और अगर ये आप पहले से ही करके चले जाए, अब जो है फिगर्स बहुत बढ़िया आने लग गई हैं, लैक्स में, करोड्स में. सो व्हेन यू ऑलरेडी नो कि ये चीज़ें होती हैं, तो आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पास. नाउ the most important thing that we must talk about is the paper attempting strategy. Paper 1 के लिए what worked for me. So the only thing that worked for me is मैं examination hall में enter हुई. As soon as our time started, मैं straight away paper 2 पे jump किया and you might not believe it, I finished that paper in around 1 hour. मैंने जो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट कह रहा था, मैंने वो क्वेश्चंस जल्दी 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 कर लिए. आई न्यू दैट ओके आई कैन कम बैक टू दीज क्वेश्चंस, बट मेरी सिस्टर, माई फ्रेंड्स हु हैव अपीयर्ड फॉर दिस पेपर, उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली कहा था कि उनसे टाइम ही मैनेज नहीं हुआ था. दे कुड नॉट मैनेज टाइम एंड वो पेपर 1 के क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट क्योंकि उन्हें लगता है अच्छा पेपर 2 हमारा पेपर है, पहले हम करते हैं, पूरा टाइम पेपर 2 करने में चला जाता है. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर 1 को ज़्यादा टाइम देना, नॉट पेपर 2 से ज़्यादा टाइम, बट जितना आप 30 मिनट्स 40 मिनट्स सोच रहे हो, इनफैक्ट 1 घंटा भी मेरे अकॉर्डिंग कम है, बिकॉज यहाँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एंड मोस्ट, अगर हम ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स की बात करें, वहाँ आपको आइदर यू नो द क्वेश्चन और नॉट. अगर हम पॉल साइंस की बात करें, IR की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, बट पेपर 1 में ऐसा नहीं है यार. पेपर को आप 1.5 घंटा ज़रूर दीजिए मेरे अकॉर्डिंग. 1.5 नहीं दे सकते तो एटलीस्ट 1 hour 10 minutes टाइप ज़रूर रखिए इस पेपर के लिए. ठीक है 50 क्वेश्चन है, बट ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली लोगों से सॉल्व नहीं होते. तो अगर आप कर रहे हैं तो इट विल बी ग्रेट फॉर यू. नाउ कितना स्कोर लाना चाहिए पेपर 1 में कि हम नेट या JRF क्लियर कर लें? मेरे अकॉर्डिंग इफ़ यू आर स्कोरिंग 30 प्लस, इट इज़ अ ग्रेट स्कोर and you can easily clear net. If you've scored like optimally in paper 2, not extremely high, not extremely low. बट इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर JRF, मुझे लगता है आपको 35 प्लस करने पड़ेंगे. बहुत रेयर इंस्टेंसेज हैं जो अपने ही पेपर में 90 कर लेते हैं या 85 प्लस कर लेते हैं, बट मेरा 36 का स्कोर था एंड आई हैड लाइक एवरेज स्कोर इन पेपर 2. आई वुड नॉट से इट वॉज एक्सट्रीमली गुड, बट ऑब्वियसली JRF हो गया तो इट वॉज गुड. बट मुझे पता था कि आई डिड नॉट गेट द टाइम कि इन डिटेल में पढ़ सकूँ, तो मैंने इसको भी टाइम दिया था कि यहाँ से मैं क्वेश्चंस ले लूँ, बिकॉज इट डज नॉट मैटर आपके पेपर 1 में ज़्यादा है, पेपर 2 में ज़्यादा है. Overall, you have to clear JRF or net. So I think any score above 35 is amazing. And up to people 40 भी ले आते हैं because कुछ predictable questions अगर आप analysis कर लो past year papers का, तो I think it is pretty much doable. So this was about my own strategy, the paper attempting strategy, my sources, and an optimum score you must get to clear net or JRF. If you want me to talk about each unit in detail,
मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मैंने क्या पढ़ा, मैं अपने नोट्स दिखाऊँ. इफ़ यू वांट दैट आई कैन डू दैट एज वेल. So comment down below for that and share this video as much as possible because I think paper 1 तो सब पढ़ते हैं. So share it with whoever is appearing or planning to appear for this paper. And like, comment, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Bye. Thank you.